Good morning, students. How are you? I hope you are well. So, without delay, we are going to start our class, and our new chapter is more on MS PowerPoint. लास्ट क्लास में हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था। वर्ड क्या होते हैं, कैसे हम लोग उसमें काम करते हैं। इस क्लास में हम लोग पावर पॉइंट के बारे में जानेंगे कि पावर पॉइंट क्या होते हैं, पावर पॉइंट कैसे काम करते हैं। इट मीन कि लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने, पिछले क्लास में आप लोगों ने पावर पॉइंट के बारे में सीखा भी होगा। तो इस क्लास में हम लोग उस पावर पॉइंट के कुछ और अधिक जो टूल्स होते हैं उनके बारे में सीखेंगे कि पावर पॉइंट हमारा कैसे काम करता है और किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पावर पॉइंट को। मोर ऑन MS PowerPoint 2013. We are going to learn more on MS PowerPoint 2013. In this chapter, we would understand various uses of and features that can make our presentation more attractive. You can add smart art, sound, narration, animation, and video to your presentation. You will also learn to change presentation into a video, creating a design template. Templates are the default themes and text arrangement that are already designed in PowerPoint. You can simply select a template, just add text or video or audio to it, and your presentation is ready. MS PowerPoint 2013 have various design templates as shown in figure 4.1, which can be used while preparing presentation. But if you do not want to use these templates but create templates for future use, you can easily do. Here are some steps. So step 1, click on File tab. Second is click on Save As to open the Save As dialog box. Now third, enter the name of the file. Now click on Save As type to open a drop-down list. Click and select PowerPoint template and click on Save. In the previous class, you have learned how to work with Slide Master. Once you have designed a Slide Master, follow the steps shown in figure 4.2. PowerPoint templates are saved with the file extension as .potx. Applying slide transition. A slide transition is a method in which every slide arrives on the screen. It adds movement to your slide as you shift from one slide to another. You can apply only one transposition per slide. These steps to add transition to a slide are shown in a figure 4.3. So now step is there. Select the slide on which transition is to be applied. Second, click on the transition tab. Third, select the transition from the transition in the slide group. Fourth, tick off effect option and add effort to select transition. Fifth, add sound to transition by clicking on the sound drop down list. Sixth, change the duration of the transition. Now click on the preview to view the effect of the transition. Now feature for adding transition to slide. Transition to the slide group. Click on the more drop down arrow of the group to find favor transition option, figure 4.4. Some of these add fade, push, wipe, blind and clock. Now effect option. For each transition option and assortment of effect is available. These effect option vary depending on the transition. Select figure 4.4. So effect option for the some transition. So here is fade, push, wipe, split, rebel. Now sound. You can also add sound to the slide transition. Open the sound drop down list, figure 4.6. A to choose a sound from various options. These may be braze, chime, explosion, laser, etc. You can also add your own sound file by selecting the other sound option from the list. Now duration. You can increase or decrease the speed of your slide transition by entering time in second in during field 4.6 or clicking on to increase or decrease the duration of the transition. More the duration, slower is the transition. The default duration of each transition is 1 second. Now apply animation. Adding transition to slide make the arrival of slide attractive. Nevertheless, it does not make the text or object on the slide look strange. For this, you require to interest animations
to the slide animation, add visual effects to the text and object of the slide. It can make an item spin around or fade out. It can make text grow larger and object fly in a different direction. Now, to take an example, in a place of making a list appear at once, every bulleted item can appear one by one as so in a figure 4.7. This can be done by subsequent to steps so in figure 4.8. So a step is there, select the item you want to animate. Second option, tick on the animation tab. Third, choose the animation from animation group. Fourth, click and select effect option to add effect to your animation. Now, animation group. There are various animation options that can be seen one clicking the more drop down arrow of the animation group, figure 4.9. Some of the animation are spelled, shape, will, grow, etc. Effect option. For every animation choice you can select various effect. These effect option vary depending on the animation. Select figure 4.10. Show effect option for some of the animation. Now, timing group. You can decide the start time and duration of the object animation. The start drop down list has the subsequent option. On click, the animation begin when you click on the mouse. With preview, both the previous and next animation effect start at the same time. After preview, the animation effect start manually after the preceding animation effect finish. You can decrease the duration of animation by entering the time in second in the duration box. You can also hold up the starting and animation by entering the time in a second in the delay box. तो अभी हम लोगों ने MS पावर पॉइंट के बारे में पढ़ा, MS पावर पॉइंट के बारे में जाना कि कैसे वर्क करते हैं, क्या काम करते हैं। तो इसमें होता है क्या कि MS पावर पॉइंट जो हमारा चैप्टर है बहुत ही आसान होता है। इसके द्वारा हम लोग अपने किसी भी प्रेजेंटेशंस को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। हम लोग इसमें साउंड, वीडियो, कुछ एनिमेशन इफेक्ट्स और बहुत सारी चीजें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। तो कैसे डिजाइन क्रिएट करेंगे। क्रिएटिंग हम लोगों ने डिजाइन देखा था, तो डिजाइन को कैसे क्रिएट करें उसमें आपको बताया गया था कुछ स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम लोग आसानी से अपने उस डिजाइन को क्रिएट कर सकते हैं। जो हमारा डिजाइन होता है प्री डिफाइंड पहले से बना होता है। अगर हम चाहते हैं कि इन फ्यूचर हमारा वो डिजाइन बना ना रहे, हम खुद वो डिजाइन क्रिएट करें, तो इस MS पावर पॉइंट में ये फीचर भी दिया रहता है कि आप अपना खुद का डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग एनिमेशन के डिजाइन को भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फाइल को सेव करने के लिए इसका एक एक्सटेंशन नेम होता है .potx यानी कि पावर पॉइंट टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो पहले .ppt होता था पावर पॉइंट, लेकिन अब जो नए जनरेशन में आ रहे हैं .potx होते हैं। तो ये इसका एक्सटेंशन नेम होता है जो कि हमारे फाइल उसमें सेव होते हैं। ना अब हम लोग पढ़ेंगे अप्लाइंग स्लाइड ट्रांजिशन। अब स्लाइड ट्रांजिशन को कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको अपने बुक में कुछ स्टेप्स दिखाए थे। उन स्टेप्स का फॉलो करके आसानी से हम लोग अपने उन सभी ट्रांजिशंस को, स्लाइड्स को यूज कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि स्लाइड ट्रांजिशन के यूज करने के द्वारा हम लोग अपने एनिमेशन इफेक्ट को यानी हम अपने प्रेजेंटेशंस को बहुत ही आसानी से फ्लो कर सकते हैं, रन कर सकते हैं और इनके द्वारा हमारे जितने भी प्रेजेंटेशंस होते हैं बहुत ही इजी तरीके से रन होते हैं। इसके बाद होते हैं कुछ फीचर्स इसमें आते हैं कि हम अपने उस ट्रांजिशन में, उस स्लाइड्स में क्या क्या ऐड कर सकते हैं, तो वो हम देखते हैं। तो इसमें ऐड करने के लिए होता है पहला क्या कि ट्रांजिशन टू स्लाइड यानी कि ट्रांजिशन हम लोग ऐड कर सकते हैं। कैसे ट्रांजिशन ऐड करेंगे, तो ट्रांजिशंस को ऐड करने के लिए जब हम लोग एनिमेशंस के ग्रुप में जाते हैं तो वहां पर हमको एक ट्रांजिशन का ऑप्शन मिलता है। उस ट्रांजिशंस के ऑप्शन के द्वारा हम लोग आसानी से हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं और उसमें आपको मिलेंगे फेड मिलेगा, वाइप मिलेगा, ब्लाइंड मिलते हैं। तो बहुत सारे आपको एनिमेशन इफेक्ट मिलेंगे जो कि बहुत ही इजी होते हैं और देखने में अट्रैक्टिव भी लगते हैं। इसके बाद कुछ इफेक्ट ऑप्शन आते हैं। आजकल हर कोई अपने इमेज को एक वीडियो बना रहा है, तो वीडियो में हम लोग इफेक्ट भी डालते हैं इसी के द्वारा। तो इसमें कुछ इफेक्ट होते हैं, तो वो इफेक्ट होते हैं जिसके द्वारा हम लोग आसानी से अपने इस प्रेजेंटेशंस को बहुत ही आसान बना सकते हैं। तो अब आसान बनाने के लिए इसमें भी आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं। इसके बाद आता है साउंड। तो अब अपने
किसी भी चीज में, जैसा कि हम लोग मूवी देखें, अगर वो मूवी में साउंड ना हो तो बहुत ही बोरिंग होती है, लेकिन अगर उसी मूवी में साउंड होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें देखने के लिए। तो अब हमें इस चीज को देखने के लिए हम अपने प्रेजेंटेशंस में साउंड को भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग साउंड ऑप्शंस पे जाते हैं, साउंड ऑप्शन से हम लोग साउंड को क्लिक करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि अपने कुछ बनाए हुए साउंड्स, कुछ म्यूजिक्स ऐड करें, तो उसके लिए भी ऑप्शंस होते हैं, वो उसी के द्वारा हम लोग साउंड को ऐड कर लेते हैं। इसके बाद है ड्यूरेशन। अब हम देखते हैं कि जैसे कि आजकल की मूवीज होती है वो 3 घंटे की मूवी चलती है। अब हम देखते हैं कि वो हमारा भी प्रेजेंटेशन कुछ देर का हो, जैसे 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट ऐसे चलता रहे, तो उसके लिए भी कुछ ड्यूरेशन होते हैं। वो ड्यूरेशन हम लोग यहाँ पर इस ड्यूरेशन बॉक्स में, यानी कि मैंने आपको ड्यूरेशन बॉक्स दिखाया था, उस ड्यूरेशन बॉक्स में जाकर के हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और इस ड्यूरेशन बॉक्स में हम लोग सेकेंड बढ़ा सकते हैं, मिनट बढ़ा सकते हैं, जितना बढ़ाना चाहे हम लोग इसमें बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और अगर डिक्रीज भी करना हो तो आसानी से हम लोग डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा हुआ ट्रांजिशन इफेक्ट, एनिमेशंस, इसके बाद साउंड और ड्यूरेशन, ये सारा हम लोग अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस में कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि एनिमेशंस को अप्लाई करना, कैसे अप्लाई करेंगे। तो एनिमेशंस को अप्लाई करने के लिए बहुत ही इजी तरीका होता है, जो कि हम अपने एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एनिमेशंस को अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो हमने कुछ स्टेप्स बताए हैं और उन स्टेप्स का फॉलो करके आसानी से हम लोग अपने उस प्रेजेंटेशंस में अपने एनिमेशंस को, स्लाइड्स को, ट्रांजिशंस को हम लोग ऐड कर सकते हैं। अब इसमें आता है एनिमेशंस ग्रुप। तो एनिमेशंस ग्रुप क्या होते हैं? एनिमेशन ग्रुप हमारा बहुत सारे ऑप्शंस देते हैं एनिमेशंस के लिए, जिनके द्वारा हम लोग अपने एनिमेशंस को अपने उस प्रेजेंटेशंस में ऐड कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से। अब इसमें एनिमेशंस क्या 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 आएंगे आपके? तो एनिमेशन में शेप आते हैं, व्हील आते हैं, इसके बाद जूम आते हैं, तो बहुत सारे आपको एनिमेशंस वहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद इफेक्ट ऑप्शन, जैसा हमारा उसमें था, यहाँ पर भी कुछ इफेक्ट ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर भी इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो इसमें इफेक्ट जो आपको मिलते हैं वो होते हैं फ्लाई इन, यानी कि उड़ाने के लिए। इसके बाद होता है शेप्स आते हैं, उसके बाद स्पिन आते हैं और इसके बाद बाउंस आते हैं। बहुत सारे इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं इसमें। इसके बाद आता है टाइमिंग ग्रुप। तो टाइमिंग ग्रुप क्या होता है? इसमें हम लोग टाइमिंग को भी सेट कर सकते हैं, जैसे हमने वहां पर सेट किया था, यहाँ पर भी अपने टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 3 ऑप्शन मिलता है। ऑन क्लिकिंग, यानी कि जब जब हम माउस को प्रेस करेंगे तब तब हमारा प्रेजेंटेशन रन करेगा। इसके बाद होता है कि विथ प्रीव्यू, यानी कि एक बार मैंने सेट कर दिया और फिर वो आसानी से चलना शुरू हो गया। इसके बाद होता है आफ्टर प्रीव्यू, यानी कि अगर हमने वो प्रीव्यू किया तो उसके बाद उसकी टाइमिंग कुछ सेट्स होती है। तो इसके द्वारा हम लोग आसानी से अपने इस प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। इसमें क्या आपको 1-2 चीजें मिलेंगी। एक तो होता है कि प्रेजेंटेशन के साथ साथ चलना और एक डिले के साथ, यानी कि रोक करके चलना। तो इसमें हम आसानी से अपने प्रेजेंटेशंस को ऐड कर सकते हैं और प्रेजेंटेशंस को ऐड करने के लिए बहुत इजी तरीका होता है। अगर जब भी हम लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को पढ़ते हैं या देखते हैं, आपके घर में भी अगर सिस्टम होगा, पावर पॉइंट को ऑन करिएगा, जो जो स्टेप आपको बताया गया है उस स्टेप को फॉलो करिएगा, आसानी से हम लोग प्रेजेंटेशंस को क्रिएट कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए सबसे एक अच्छा उपाय होता है कि हमें पहले कुछ चीजें प्लान करनी होती हैं कि प्रेजेंटेशन हम किसका बनाएंगे। जैसे अगर हमें स्कूल के बारे में बनाना हो, तो स्कूल का अगर प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो स्कूल कैसा होगा, उसकी बिल्डिंग कैसी होगी, उनके टीचर्स के बारे में, उनके स्टूडेंट्स के बारे में, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उनके माहौल के बारे में, ये सारी चीजें पहले हम एक बार प्लानिंग करेंगे। आप लोग अपने स्कूल का ही प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे और क्रिएट करके आसानी से हम लोग इसमें बना सकते हैं और देख सकते हैं। और इसमें आसानी से हम लोग ये काम करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप अपने स्टेप्स को फॉलो करते जाएंगे, तो हमारा आगे का ये प्रोसेस होता जाएगा। तो आज के लिए हमारा क्लास यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे अपने इंसर्टिंग टेबल्स के बारे में, यानी कि हम लोग कैसे अपने इस पावर पॉइंट में टेबल को इंसर्ट करेंगे। तो ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और तब तक के लिए धन्यवाद।